ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I really beg forgiveness. I have got fever. I got up at 3:30 morning and then my body was hot and it was really, I was having fever. तो इसलिए मेरे को थोड़ा फिर से सोना पड़ा. But I saw such a wonderful dream that I got up again now. So I saw how so many devotees have come. All of you have also come. And there is a big festival. His Holiness Radhanath Swami Maharaj has come. And there is initiation festival. And so many devotees have come because for a long time our initiations were pending. And all devotees are so happy. And we had some makeshift arrangement for devotees. And I was going around and receiving devotees and asking them how is prasadam and everything. Then I thought that actually we didn't had proper washrooms. So only 2-3 washrooms were there. So and there was a big line for the washroom. So then I was thinking in the dream, these devotees standing in the line in the washroom will be very, very frustrated because so I thought I'll go and talk with them and somehow try to pacify them and beg forgiveness that next time there will be more washrooms. So as I was talking with devotees near the washroom area, a big line was there. All devotees were very happy with the prasadam and everything. And then slowly, devotees started dispersing. And then one devotee caught me and he took me to another devotee to introduce me. And he said, oh, this Prabhuji, Sri Nitai Das, to the other devotee, he said. And so that other devotee asked, so what is Prabhuji's background? So I didn't wanted to say anything. So then I looked back and I said, my background is brown. And then the other devotee started laughing and this devotee started laughing and I was also starting laughing and everything. And then said, Prabhuji has good sense of humor. Then I said, previously my background was black and now it has become brown by mercy of Srila Prabhupada. Then I got up and I was just thinking, yes, true, what I said in the dream is actually a reality. That all of us, our background was black. But now if you look back, it has at least become brown. Yes, it has at least become brown. And hopefully it will become grey. And more hopefully, it will become white one day. And will unite with Krishna, Guru, and Srila Prabhupada in Vrindavan Dham.
So, if dreams can be so nice, how reality would be with Krishna, with devotees. And all of you, I think we were taking so much of prasadam, I could not meet someone of you. Or maybe all of you were there in this Zoom meeting. That's why you were not there taking prasadam when Maharaj has come. Hare Krishna. Okay, so we have two options now. We can either chant Hare Krishna or we can discuss. Anyone has any question? And I am seeing some devotees have not switched on their videos. They can switch on their videos. And I'm also seeing some devotees have joined 2-2. So please join 1-1 so that attendance is taken properly. Okay. किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, yes. सवाल नहीं है प्रभु जी, सजेशन बना आपने जब बोला कि ऑप्शन है and as you are in fever we will chant from. ओके, ऑप्शन है ये ऑप्शन, बाकी डिवोटी से पूछते हैं. और किसी का कुछ सवाल है? No? Okay, so we will discuss now because all of you have also chanted. So हम चर्चा कर रहे थे इसका डिस्कशन का, एंड जो पांचवा पॉइंट था इधर लिखा हुआ है, देखिए जो छूट गया था कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय डेस्टिनी, व्हाट एवर इज हैपनिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड. आप बहुत सारे लोगों से जब मिलेंगे इस तरह का बताएंगे. कितने लोग इस तरह के लोगों से मिले हैं जो बोलते हैं कि सब कुछ तो फिक्स्ड है, सब कुछ जो हो रहा है सब भगवान के इच्छा से हो रहा है. ओके, तो वो क्यों ऐसे बोलते हैं? पहला तो क्यों ऐसे बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या हम उनको बोल सकते हैं. ओके, ये पॉइंट कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु. ओके, yes. Actually, Prabhuji, people are saying this, it is fixed by God, destiny is fixed, because it is from their childhood they are getting this type of knowledge from their parents or from their teachers. That's why they are. Okay, from childhood they are getting the knowledge and that's why they are speaking. Anything else? Hare Krishna Prabhuji, Prabhuji, they don't want to change their attitude. Okay, so they put everything on destiny. So they don't want to change, and because they don't want to change their attitude, they put everything on the destiny. Okay, but why some reference they give based on that statement? Any reference they give? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी अच्छे से याद तो ये कि नचिकेता का एक एग्जांपल है ना, नचिकेता का, वो मिट्टी डालकर समुद्र में बार-बार. नचिकेता का एग्जांपल में क्या होता है? वो पता नहीं कुछ एक अच्छे से ध्यान नहीं है प्रभु जी, होगा उसमें है कि कुछ देवता कुछ वो करने होता है, इंद्र जी आते हैं, मतलब अच्छे से याद नहीं. ओके, उपनिषद में नचिकेता का एग्जांपल आता है. ओके, ठीक है. और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, पीपल गो दैट होई है वही जो राम रचि रखा. ओके, होई है वही जो राम रचि रखा. और क्या? तो जब हम ध्रुव महाराज का कहानी जब पढ़ रहे थे ना, तब कुबेर बोलते हैं ना ध्रुव महाराज को, जब ये लड़ाई हो जाता है, ध्रुव महाराज क्षमा मांगने के लिए कुबेर के पास आते हैं, तो कुबेर बोलते हैं कि हमारे ऊपर और भी एक फोर्स होता है जिनके वजह से, मतलब जो काल होता है, काल ऐसे चले जाते हैं, तो काल के नियम से हम अपना काम करते जाते हैं, और एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ऑलरेडी एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ओके, कुबेर बोलते हैं ध्रुव को. और वो तो बाहर के लोग तो कुबेर ध्रुव का संवाद नहीं बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? और प्रभु जब अपने अलग से को भी जस्टिफाइड करना चाहते हैं. ओके, वो लिख लिया हमने. बाहर के लोग क्या बोलते हैं?
ओके, शुभ कृष्ण बोल रहे हैं भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं? हाँ, ओके, और क्या बोलते हैं इस तरह का? ओके, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। ओके, भाग्य में जो लिखा है। और भाग्य कौन लिखा है? हाँ, फिर भगवान रासलीला कैसे करेंगे? आपका भाग्य, इतने सारे लोगों का भाग्य लिख लिख के बेचारा तो परेशान हो जाएगा, और रासलीला कब करेगा? हाँ, उसका भाग्य लिखा है, इसका लिखेगा, उदाहरण कृष्ण का लिखेगा, अरिजीत प्रभु का लिखा, चंदन प्रभु का लिखेगा, वीर नरसिंह का लिखेगा, हाँ, सबका लिख के इतना लिखेगा पेन खत्म हो जाएगा। और राधा रानी पूछेगी कृष्ण को तुम क्या लिख रहा है? ना भाग्य लिख रहा हूं मैं। डांस कब करेगा? ना भाग्य लिखने के बाद करेंगे। अरे बाप रे, बेचारा भगवान भाग्य लिख रहा है। ओके, और कोई? भगवान की इच्छा अनुसार तो परिकल्पना तो साबित होता है। ओके, परम पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है, ऐसे हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? क्योंकि भाग्य तो है ही, भाग्य तो सही है, भाग्य तो बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं उनको? मुझे 9th चैप्टर का श्लोक का रेफरेंस दे सकते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनापति उपासते। 9th चैप्टर का रेफरेंस से क्या होगा? कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना, भक्ति करें या अपना जीवन संभाले, ये करें वो करें, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ओके, भक्ति करने से हमारा जीवन संभल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, रेफ्यूटेशन में द्रौपदी जी का और भीष्मदेव का वो लिख सकते कि द्रौपदी जी ने पिछले जन्म में किसी साधु का वो किया था, अपमान किया था, तो फिर नेक्स्ट जन्म में उनके भाग्य में आया वैसा अपमान हुआ उनका। लेकिन फिर अगर हम भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए कृष्ण का सुरक्षा भी रहता है। ओके, ये द्रौपदी जी का कहानी कहाँ आता है? आपने सुना है क्या मेरे से? प्रभु जी आपसे तो नहीं सुना है। ओके, तो कहाँ से सुना ये? भीष्मदेव का भी है प्रभु जी। भीष्म जी भी कुछ एक सांप को फेंक देते हैं कांटे पे, इसलिए उनको कांटे पे आना पड़ता है। और ये कहाँ से सुना आपने? उनसे ही सुना है, गुरु से ही सुना है मैंने। कहाँ से? ओके, राधे श्यामरू बताते हैं इसको। ओके, तो हाँ, राइट सोर्स से सुना है प्रभु जी। ओके, राइट सोर्स से सुना है। ओके, द्रौपदी जी और भीष्म ऐसे किए, इसीलिए ऐसे हो गया। ओके ओके, तो आपका कहना क्या है? प्रभु जी, भाग्य में जो लिखा है वो होता है, बट अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए मंगलमय हो जाता है। ओके, सौभाग्य में जो लिखा है वो होता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो पर क्वेश्चन तो इधर कुछ और है कि सब कुछ क्या फिक्स है ऑलरेडी? तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा ना, अंग महाराज को पुत्र नहीं था, फिर एक हमने चित्रकेतु की कई सारी पत्नियां थी, उनको भी पुत्र नहीं हो रहे थे, वो सब क्या आएगा इसमें? वो तो आप बताएंगे, आपने लिखा है, मैं कैसे बताऊं? लिखना तो आपको है। आप एग्जाम लिख रहे हैं। भक्ति करने से बदल जाता है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, इसमें दो चीज आता है, एक तो डेस्टिनी, यस एवरीथिंग इज फिक्स्ड, बट हाउ टू रिएक्ट इन दैट डेस्टिनी, दैट इज नॉट फिक्स्ड। एवरी इंडिविजुअल जीवात्मा दे कैन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू देयर विश। तो जैसे कि मेरा डेस्टिनी में 1 करोड़ रुपीस लिखा है, अभी 1 करोड़ रुपीस में मंदिर में भी लिखा है क्या? अरे मंदिर में डालो। पावन कृष्ण कहा गया? हाँ? अरे बोल 1 करोड़ लिखा हुआ है रे।
मंदिर में डालो। पावन कृष्ण क्या बोल रहा है? हाँ? मुझे भी पता नहीं कि लिखा है क्या। अभी तो लिखा है कि सब खाली जा रहा है, शादी के बाद से जा ही रहा है, आ नहीं रहा है कुछ भी। अभी आगे लिखा है कि आने का है। ओके, ओ कृष्णा। हाँ हाँ, 1 करोड़ लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। एक्चुअली इधर लिख लेने से एटलीस्ट आएगा। 1 करोड़ लिखा हुआ है। हाँ, तो 1 करोड़। और वो जीवात्मा के पास ये ऑप्शन भी है कि वो जो 418 प्रिंसिपल है ना, वो तोड़ सकता है, जैसे वो स्लॉटर हाउस भी खोल सकता है। जीवात्मा के पास ये ऑप्शन भी है। अभी वो स्लॉटर हाउस खोलेगा तो उनका नेक्स्ट क्या होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। और अगर वो मंदिर में वो दान करेगा तो उससे उनका जैसे क्या बोलते हैं, सुकृति बढ़ते जाएगा। ये तो एक है। और दूसरा ये है, अगर कोई बच्चा आके उनकी मम्मी के पास आके बोलेंगे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय डेस्टिनी, मुझे पढ़ने का जरूरत है ही क्या, तो मम्मी उनको ऐसे बोलेंगे क्या कि हाँ फिक्स्ड है तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, सो दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट कि जब हम बोलते हैं कि भगवान के पास आओ, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एंड जब डोर लगेगा भगवान का, करेक्ट, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? जब डोर लगेगा भगवान का हम जाएंगे। सब तो फिक्स है ना प्रभु, कौन कब भक्त बनेगा। आप जो सन्यासी हैं ये सब लिखा हुआ है, भगवान लिख के भेजे हैं, इसीलिए आप बन गए। तो हम जब भगवान भेजेंगे, भगवान करेंगे, तब हम मंदिर आएंगे, भक्त बनेंगे। अभी हमारा लिखा नहीं गया है। तो माता जी इज टेलिंग ए वेरी नाइस पॉइंट। अगर आपका लिखा हुआ है ऐसे, तो बोल रहे हैं भगवान के भक्ति जब चालू करें, भगवदगीता कब पढ़ेंगे, जब लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा। तो आप क्या कीजिए कि स्कूल क्यों जा रहे हैं, वो तो लिखा हुआ है, स्कूल मत भेजिए। जब डोर लगेगा टीचर का तब स्कूल भेजिए। खाना क्यों खा रहे हैं, जब डोर लगेगा तब खाना खाइए। टॉयलेट क्यों जा रहे हैं, जब वॉशरूम आके डोर लगा के पूरा आपको खींच के लेके जाएगा, टॉयलेट में बिठाएगा, तब जाइए। तो इन दिस वे डेस्टिनी सेज दैट व्हाट वी विल गेट, बट फ्री विल सेज how we will respond. So destiny is of two parts. Prarabdha and aprarabdha, and prarabdha is what we are getting now, which we are able to see, and aprarabdha, what is stored, it affects our free will to respond. So this is the cycle. So you have some prarabdha, and definitely if you respond well to the prarabdha, then you get out of your destiny, correct? Let us say Mataji is giving example, 1 crore I have. If I give that 1 crore to temple or some good place, then that response to 1 crore is in my hand, right? That's what Mataji is telling the example. And so that response is in my hand. Destiny may not be in my hand. So, but problem is what? The problem is even destiny is not in your hand, and the response also sometimes is not in our hand, because response is mostly coming from the aprarabdha. Let us say you will see some people having prarabdha very good, and aprarabdha very bad. Then what will happen with these people? Who has prarabdha very good, they will get 1 crore, and aprarabdha very bad, they will use 1 crore in breaking 4 regulative principle, going to beer bar, nightclubs, and all those things they will do.
You have seen such people? They'll have a lot of money in their life, they'll waste also a lot of money. And sometimes some people have prarabdha, which is very bad. They will be bhikari in this life, but their aprarabdha is very good. Even if they get 100 rupees, they will give 10 rupees donation to temple. Right? So then this cycle is there of prarabdha and aprarabdha. Though we may say we have free will, but our free will is very much affected or is a function of aprarabdha that is stored. So this prarabdha and aprarabdha create a cycle, dangerous cycle in the life of a living entity. Though the living entity has free will, but it is almost like living entity becomes a robot in the hands of the destiny. You are able to understand how we are all robots? It's not just about the destiny. खाली डेस्टिनी होगा तो हम रोबोट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा फ्री विल है. आपको समझ में आ रहा है ये चीज हम जो बता रहे हैं? ओके, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या समझा? ओके, ठीक है, वीर नरसिम्हा प्रभु एक्सप्लेन करेंगे क्या समझे. हरे कृष्ण। हाँ. सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने लग रहे हैं कि हमारे जो अभी कर्म आ रहे हैं पिछले जन्म में हमने जो भी कुछ किया उसका एक रिस्पॉन्स अभी आने लग रहा है। जैसे हमारी लाइफ में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है। अब एक तो ये हो गया प्रारब्ध जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही, लेकिन अभी हमारे कुछ और भी पास्ट कर्मा है जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, दैट इज अप्रारब्ध। वो जो पास्ट कर्मा है वो ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास फ्री विल तो है, मेरे जीवन में दुख आया, हम उसको रिस्पॉन्स कैसे दूं? मैं इसको ये मानूं कि भगवान की इच्छा से भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, या मैं उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जाऊं, वो मेरे पास फ्री विल है। लेकिन वो फ्री विल भी पूरी तरीके से फ्री नहीं है, उसके अंदर किस चीज का इम्पैक्ट आ रहा है? जो मेरे पास कर्मा है जो अभी तक फ्रूटफुल नहीं हुए हैं, जो अभी तक आए नहीं है, उनका इम्पैक्ट है उसके अंदर। तो जैसे आप एग्जांपल देके समझा रहे थे कि किसी के प्रारब्ध मतलब कि उसके पास अच्छे प्रारब्ध है, मींस ही हैज गॉट मनी, रिचेस, एवरीथिंग, लेकिन उसके अप्रारब्ध जो उसके अभी तक कर्मा फ्रूटफुल नहीं हुए हैं वो बेकार है, तो वो उसको पुश करेंगे सिंपल एक्टिविटीज करने के लिए, और इसी तरीके से इसका बोले या सो हमारा जो फ्री विल है वो अप्रारब्ध का एक फंक्शन बन जाता है। तो हमारा फ्री विल उतना फ्री नहीं रहता है, तो इसीलिए हम ऑलमोस्ट एक डेस्टिनी का रोबोट बन जाते हैं। तो लोग जो बोलते हैं पूरा गलत तो नहीं है, हम भाग्य में वो हैं, पर भाग्य को बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे? कैसे भाग्य बदला जा सकता है? ओके, भगवान की भक्ति सुप्रीम अल्टीमेट हो गया। ओके, भगवान की भक्ति सुप्रीम अल्टीमेट हो गया, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट हर समय भगवान की भक्ति से ही भाग्य बदलता है। भगवान क्या कर सकते हैं? पूरा इरेज कर सकते हैं, पर ये जो भाग्य की रेखा है इसको हम बहुत सारे लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई हमारे जीवन में भक्त आ जाता है तो इंटरवेंशन हो जाता है, कोई हमारे जीवन में महत पुरुष आ जाता है, साधु संत आ जाता है, उनको हम प्रेम करते हैं, उसके वजह से भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट भगवान आएंगे, भक्ति आएंगे। कोई देखते हैं हम कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ही पापी व्यक्ति होते हैं, पाप करने में, बट किसी तरह उनका कोई संत से प्रेम हो जाता है, तो संत के वजह से वो छोड़ देते हैं सब कुछ। वो खुद भक्ति नहीं करेगा बट संत को प्रेम कर रहा है, इसीलिए सब 4 नियम पालन करने लग जाता है, सब कुछ करने लग जाता है। तो भगवान तो आते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है इस जो चक्रव्यूह से हटाने का, वो है भक्त। तो अगर हमारा भक्त से प्रेम हो गया, कोई भक्त को अगर हम प्रेम कर लिए, और जो भक्त शुद्धता है और जो भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा है, बस। तो इसीलिए भागवत में क्या श्लोक आता है? कौन सा श्लोक?
प्रभु जी, प्रसंगम अजर हाँ, प्रसंगम। वन हरि बोल फॉर प्रीति माता जी। प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये श्लोक आता है कपिल मुनि के सेक्शन में भागवत में। प्रसंगम अजरम पासम, अजरम, जरम मतलब, जरम मतलब जो मेरे को हुआ है, ज्वर, फीवर, और फिर ओल्ड एज, बीमारी। प्रसंगम अजरम पासम, पासम मतलब रोप, पास। सो ये जो रोप है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत साल के बाद रोप ढीला हो जाता है। आपने देखा होगा, कुछ गांठ बांधा आपने और सालों साल के बाद वो गांठ ढीला हो जाता है, अपने से गांठ ढीला हो जाता है, फिर से टाइट करना पड़ता है। या फिर उसका जो रेसे होते हैं ऐसे गिरने लग जाते हैं और उसको ऐसे ही तोड़ो तो टूट जाएगा। तो कपिल मुनि बोल रहे हैं कि ये जो पास है, ये जो चक्रव्यूह है, प्रारब्ध अपरारब्ध और सब, ये सबका चक्रव्यूह है, अजर है। ये कभी ढीला नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं अपने से। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कबयो विधु, आत्मनो, ये आत्मा को बांधता है। आत्मा इज ऑलरेडी फ्री, ऑलवेज फ्री, करेक्ट। और ये भाग्य आत्मा को बांध देता है, शरीर से बांध देता है। तो भाग्य क्या करता है, डेस्टिनी क्या करता है, आत्मा को शरीर से बांध देता है। आत्मनो कबयो विधु, जो कवि लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा को शरीर से बांधता है ये भाग्य का पास, या फिर हमारी कर्मों की पास। सएव साधु सुकृतो, पर कोई किसी का अगर कोई साधु के प्रति आसक्ति जागृत हो जाता है, किसी भी तरह, जो भी किसी भी तरह साधु के प्रति आसक्ति जागृत हो जाता है, तो फिर क्या होता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसलिए भगवान से आसक्ति से ज्यादा साधुओं के प्रति आसक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साधुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति हमारी लालसा होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए। और वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति अगर लालसा, आसक्ति आ गया तो फिर भगवान तो जरूर बंध जाएंगे, क्योंकि भगवान भक्तों के द्वारा बंधे हुए हैं। और अगर हम भक्तों से बंध जाएंगे तो भगवान बंध जाएंगे। ऐसे आपने ट्रांजिटिव लॉ पढ़ा है कि नहीं है? ट्रांजिटिव लॉ पढ़ा है? ओके, ट्रांजिटिव लॉ सब। तो ए टू बी टू सी। तो A is V and B is Bhakta. So Bhakta is related to Chaitanya. तो भगवान के साथ भक्त का रिलेशनशिप है। और अगर हम भक्त के साथ रिलेट करेंगे तो हम भी चैतन्य के साथ रिलेट, चैतन्य महाप्रभु के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये डेस्टिनी एक चक्रव्यूह है, कर्म बंधन एक चक्रव्यूह है। और जो बाहर के लोग बोलते हैं कि सब डेस्टिनी से होता है, ये सही है। पर अगर कोई किसी हमारे जीवन में कोई आ जाता है, कोई भक्त आ जाता है, तो हमारा बदल जाता है। इसलिए गुरु वर्गों को कर्म मिलता है, क्योंकि गुरु वर्ग दूसरे के ये जो चक्रव्यूह है उसके अंदर, है ना, गुरु वर्ग क्या करते हैं, ये चक्रव्यूह में घुस के उनको उस चक्रव्यूह से उनको निकालते हैं। They influence the free will of a person, right? I have seen so many times, like some people come with such horrible ideas to me कि प्रभु जी ऐसे कर सकते हैं क्या, and they are smiling and laughing कि प्रभु जी मेरे को अच्छा एक आइडिया मिला है। एंड मैं फिर जब सोचता हूँ कि ये आइडिया उसका कैसे आ सकता है,
मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल में जैसे विपरीत बुद्धि आता है और वो खुशी खुशी आता है मेरे पास, मैंने देखा है कि प्रभु जी ये आइडिया आया मेरे पास, और फिर मैं उसको तो बोल नहीं सकता हूँ कि विपरीत बुद्धि है, नहीं प्रभु जी ये मेरे को लग रहा है ठीक नहीं लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है। तो इन दिस वे the guru by his good relationship and and the disciple because of his love for the spiritual master sometimes may influences the karmic cycle of a person, and because the guru influences the karmic cycle of a person, or the devotees influence the karmic cycle of a person, they also get lot of karma, right? And previously that's why there was no concept of counseling. So jo karna hai karo. And the sannyasis used to not much involve in counseling and all, because they knew that it involves lot of karmic exchange. When you tell people to do this and do that, it involves lot of karmic exchange. So this is how the devotees and the gurus, we should be very grateful, because they are coming in our life where we didn't have any hope actually. All of us actually, we don't have any hope to come out of this cycle. And कभी कभी हम जब निकल जाते हैं, तिलक लगाने लग जाते हैं और सब सुंदर हो जाते हैं, तब हमको लगता है देखो मैं तो भक्त बनने वाला था। एक्चुअली हम भक्त बनने वाले नहीं थे, हम तो पूरा माया में जर्जरित होके हम तो बहुत पाप करने वाले थे। केवल हमको भक्तों की कृपा के वजह से हम आए भक्ति में और अभी भी टिके हुए हैं। भक्तों का हाथ छोड़ देंगे, गुरु वर्गों का हाथ छोड़ देंगे तो फिर से हम पतित बन जाएंगे। यही हमारा स्थिति है, और जो यही स्थिति को समझता है वही केवल भक्ति में टिके रहता है और अच्छे से भक्ति करके भगवान के धाम जाता है। तो ये हमको समझना चाहिए, गुरु वर्गों से कभी भी हमको आस्था छोड़ना नहीं चाहिए, और गुरु वर्गों के हर समय चरण पकड़ के रहना चाहिए, भक्तों के हर समय चरण पकड़ के रहना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग हमको कुछ बोलते हैं जो हमको पसंद नहीं आता है, तो हमको समझना चाहिए कि हाँ ये भक्त लोग हमको बोल रहे हैं कुछ पसंद नहीं आ रहा है, पर जब माया बोलेगा तो क्या ज़्यादा पसंद आएगा। तो भक्तों से कभी अनाचार नहीं करना चाहिए, गुरु वर्गों से कभी अनाचार नहीं करना चाहिए, हर समय शरणागत होकर रहना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ये जो चक्रव्यूह है ये केवल भक्त ही हमको निकाल सकता है, गुरु वर्ग ही निकाल सकता है। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय में, देखते हैं, आपका भगवत गीता का टेस्ट थोड़ा लेंगे। भगवान 9वें अध्याय में क्या बोलते हैं? मन मना भाव मत। अरे मन मना भाव मत तो नहीं, भगवान क्या बोलते हैं अपना कृष्णा's relationship with the material world in 9th chapter, Krishna is telling in the beginning of the 9th chapter. I think तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं वो तो 4th chapter में आता है। 9th chapter Krishna says, खोलो 9th chapter। 9th chapter में भगवान बोलते हैं कि आई एम उदासीना वत। 9th chapter में बोलते हैं आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल। ओके, तो इधर से खोलता हूँ, रुक जाओ, ये क्या खुल गया, शिष्टाष्टकम खुल गया। देखो दिख रहा है वेदावेश? खोलो, सबको दिख रहा है वेदावेश? नहीं नाचा मां तानि कर्माणि निबन्धितं जय ओके उदासीनवरतं तेषु कर्मसु
Yeah, so this is the ninth verse. So उससे पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे. 7th verse भगवान बोलते हैं, O son of the Kunti, at the end of millennium, all material manifestation enter into my nature, and at the beginning of the another millennium, I create them. So मैं सृष्टि करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, फिर से सृष्टि करता हूँ. ओ धनंजय, all this work, मैं जो काम करता हूँ इस दुनिया में, कोई अगर कार्य करता है, कुछ सृष्टि करता है, कुछ संहार करता है, तो वो कर्म बंधन में फंस जाता है. पर एक म्यूट करिए, कहां से तो म्यूट कीजिए. तो कर्म बंधन में फंसता है. पर आई एम एवर डिटैच फ्रॉम ऑल दिस मटेरियल एक्टिविटी, सीटेड एज दो आई एम न्यूट्रल. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन बदासीन कैसे हो गया? उदासीन बदासीन. उदासीन मतलब न्यूट्रल. So Krishna does not interfere in this karmic chakra view of anyone. Krishna doesn't interfere into the karmic chakra view, and that's how much as devotees we should think how much devotees are valuable assets. Actually भक्त नहीं होते तो there is no question of we coming out of this karmic cycle. There is no question of we becoming devotees. There is no question of whatever is happening in our life, because Krishna doesn't interfere in our karmic will. He is just udasina bat. He is neutral to this entire farce, farce that is going on in this material world. Krishna is very, very neutral. Okay. Any question in this point? Krishna Prabhuji. Prabhuji told the karmic, in our karmic account, God means Krishna don't interfere. It is totally depends upon our mind and mood. Prabhuji, why the karmic account we are involved in the bad karmic account? Suppose I am attached with the Guru and attached with the good association. After that, why the mind's coming bad karmic account? Oh, because our Saranagati to Guru is not that strong. How will you develop the strong Saranagati? Because by following the instructions, by serving the Guru, by serving the instructions of the Guru, by serving doing some service that the Guru wants us to do. By doing that, our karmic, our Saranagati will increase. How our Saranagati to husband, wife, children is increasing? By service only. By service only. Seva se hi Saranagati badhta hai. So because our Saranagati is not strong, that's why we are still hovering around with our karmic reactions and all those things. And we are suffering, we are enjoying whatever it is. Right? We see how the people, the foreigners, the Westerners, they were having such horrible karmic account, but they surrendered to Srila Prabhupada, and they surrendered to Srila Prabhupada and did so much of service. So that helps. So, yes? Yes, true. Okay, anyone else? So we don't want to surrender. So that is the main reason. Yes, Udharan Krishna Prabhu. जो दूसरे मार्ग में ऐसे ज्ञान मार्ग और कर्मयोग मार्ग में भी कई लोग इस कर्म बंधन से निकलने की बात करते हैं. Yes. कि हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कैसे डिफरेंट है? क्योंकि भक्ति में हम जानते हैं भगवान चेंज करते हैं हमारा प्रारब्ध. Yes. लेकिन वो कर्म और ज्ञान में कैसे होता है? Yes. So दूसरे बहुत अच्छा प्रश्न है. तो ये तो हमने जो बताया साइकिल से निकलने का भक्ति मार्ग का है, भक्तों के ऊपर डिपेंडेंट हो तो ऐसे होगा. तो कर्म और ज्ञान में भी द प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंस टू गुरु इज देयर. So the intervention of a superior person is there. Intervention of a demigod is there. कर्म में जैसे देवताओं की पूजा होता है वेद से, कर्म कांड और कर्म उसमें तो देवताओं की पूजा होता है. ज्ञान में भी
वो ज्ञान मार्ग में भी वो ब्रह्म का और परमात्मा का उसका उपासना करते हैं. So then there is some superior person involved. So that superior person helps us to come out, right? In karma kand there is devata, karma yog there is yajna purusha, जिसको हम यज्ञ करते हैं, the Vishnu only, yajna purusha, and different name. Then there is Gyan Yog, where they worship Brahman. Ashtanga Yoga, they worship Paramatma in the heart. So there is superior involvement always, even in the all other yogas also, there is always superior involvement. And through the blessings of the superior, they go ahead. Okay? But nothing happens like bhakti. Bhakti में कर्मणा निर्दहति. निर्दहति मतलब पूरा चकाचक साफ. Okay? Is this clear? So they also have, like, it's not that only in bhakti we say Guru Saranagati. They also have in other organization also they say that Guru Saranagati a lot. So the involvement of any superior person. Forget about that. Scripture says that parents, they involve in the life of a child and they can also change the karma of a child. So to some extent, everyone has little power. The parents may have small power to change the karma of a child, redirect the karma. So that is there. Everyone, the living entity has that power. And superior personalities have more powers. Okay? Yes. Anyone else? Arijit Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद. हाँ बोलो. हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध. हाँ. तो there can be four combination ना, प्रारब्ध good, अप्रारब्ध good and प्रारब्ध bad, अप्रारब्ध. There can be four combination. My question is प्रभु कि जिसका प्रारब्ध good और अप्रारब्ध good है, उसका कंक्लूजन क्या होगा? मतलब नेक्स्ट में भी उसका प्रारब्ध good लेके ही वो बर्थ होगा उसका, बट साइकिल से तो निकाल नहीं पाएगा. Yes, correct. Yes, so that's why we are not talking about prarabdha and aprarabdha. We are talking about bhakti yoga, आध्यात्मिकता. और प्रभु जिसका प्रारब्ध बैड और अप्रारब्ध बैड है, उसके लिए तो कुछ भी होप नहीं है. So that's what. So even if your prarabdha is good, aprarabdha is good, it's not necessary that it will remain like that. Because the association is bad. Let's say my prarabdha is good, aprarabdha is also good, okay? And I am doing all good and everything, and I am responding also in a good way, but my association is bad. So what happens is, मेरा कोई और एक व्यक्ति जो नया फ्रेश कर्मा क्रिएट कर सकता है, मेरा पैसा आके चोरी कर सकता है, ठीक है, वो गड़बड़ व्यक्ति है, वो पैसा चोरी किया मेरा, मतलब क्या है, मैं उसके साथ ऋण हो गया ना मेरा. जैसे उदाहरण स्वरूप अरिजीत प्रभु बहुत ही अच्छे हैं, उनका प्रारब्ध गुड है, अप्रारब्ध गुड है, सब गुड है, गुड है पूरा, ठीक है. और श्री निताय दास सब बैड है. तो एंड श्री निताय दास आके अरिजीत प्रभु का 1 करोड़ रुपए गुल कर दिया, ठीक है ना. नाउ अरिजीत प्रभु का श्री निताय दास के प्रति एक कर्मा क्रिएट हो गया, बस हो गया, फिर से बंधन. नाउ अरिजीत प्रभु विल से आई विल रेस्पॉन्ड गुड, 1 करोड़ रुपए सही से मेरे को रेस्पॉन्ड करना चाहिए. नाउ ये 1 करोड़ रुपए अरिजीत प्रभु का लेके सब गड़बड़ काम किया, उसका रिएक्शन भी अरिजीत प्रभु को मिलेगा. Danger has to be there. We have put ourselves in a dangerous place. That's what Srila Prabhupada says in teachings of Queen Kunti. So one may say, I am good. Then तो कुछ नहीं होगा. No, Baba. You may be good, but you have surrounded yourself with so many bad people, and they will put something, and then you may respond also in a good way. Like आपका 1 करोड़ रुपए चला गया,
आप रिस्पॉन्ड भी अच्छे से करेंगे, ठीक है चला गया, भगवान का इच्छा था चला गया, पर भगवान का तो इच्छा नहीं है। वो नालायक व्यक्ति इच्छा किया, वो 1 करोड़ रुपए गलत काम में लगाया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है अरिजीत प्रभु? ओके, तो इसीलिए दोनों ही बाढ़ है श्रीनिता दास। वो अरिजीत प्रभु का पैसा लिया, और अरिजीत प्रभु का पैसा घर से जब चोरी कर रहा था तो भूख लगा उसको, थोड़ा महाप्रसाद भी खा लिया उनके घर से। यार वो चोरी कर करके भक्त का जेब काटेगा, और भक्त का जेब काट के, जैसे हरिदास प्रभु हमारे, वो बॉम्बे में चोरी करते थे, वो करते थे, ये करते थे। श्रील प्रभुपाद का एक पिक्चर लगा था जहां पे श्रील प्रभुपाद की गोल्डन घड़ी देखा, और उनका इच्छा हुआ कि इसको चोरी कर सकते हैं, और इस्कॉन मंदिर आए, सब प्रोग्राम चालू करके सब अटेंड करने लग गए। नजर तो श्रील प्रभुपाद की घड़ी के ऊपर था, और करते करते भक्त बन गए। फिर श्रील प्रभुपाद जी को आके बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे में था, आपकी घड़ी के ऊपर नजर था, अभी आपके चरण के ऊपर नजर पड़ रहा है कि मैं शरणागत करना चाहता हूं आपको। तो भक्त बन गए, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको सेवा दिया। उसी तरह चोर भी बदल सकता है, गड़बड़ व्यक्ति भी बदल सकता है, अगर भक्तों के संग में आ जाता है। तो अगर भक्त के जीवन में कुछ होता है तो उसके लिए भी अच्छा होता है, और जो उसके जीवन में कुछ करता है उसके लिए भी अच्छा हो जाता है। ओके, तो गुड़ भी बहुत डेंजरस है। ओके, अरिजीत प्रभु का प्रारब्ध अच्छा था, फिर बुरा कैसे हो गया? बिकॉज दूसरे बुरे लोग हैं ना, संगात संजायते कामा, संग के वजह से। ओके, तो इधर शैलजा माता जी, फिर पूनम माता जी, फिर शुभ कृष्ण दास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन उदाहरण कृष्ण प्रभु के एक्सटेंशन में है। जैसे हाँ। जैसे हम लोग कर्म कांड करते हैं, देवी देवता का पूजा करते हैं, तो प्रभु जी आप बताते हैं कि वो हमें हमारे अप्रारब्ध कर्म जो है वही देते हैं। हाँ, यस। तो फिर वो हम कैसे इस कर्म से तो मुक्त नहीं हो पाते अगर हम देवी देवता का शरणागति कर रहे हैं? नहीं, आप तो कर्म से मुक्त नहीं, कर्म से मुक्त होने के लिए कोई देवी देवता को पूजा करता भी नहीं है, उनको तो कुछ बेनिफिट्स चाहिए। ज्ञान कांड से तो मुक्ति नहीं पा सकते हैं। नहीं, कौन बोला मुक्ति पा सकते हैं? मैं तो बोल नहीं रहा हूं कि मुक्ति पा सकते हैं, आप कुछ बेनिफिट्स तो पा ही सकते हैं। अरे कुछ भी बेनिफिट नहीं रहेगा तो लोग क्यों करेंगे उसको? मुक्ति के बाद तो कोई करता ही नहीं है। धर्म अर्थ काम, काम में सब एंड हो जाता है। अर्थ मिल गया, काम मिल गया, देवी खुश, मैं भी खुश। मुक्ति तो 4 नंबर पे है, चतुर्थ पुरुषार्थ है, और भक्ति प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। 3 पुरुषार्थ से 2 पुरुषार्थ में ही लोग फंस जाते हैं, अर्थ और काम। पैसा मिला, थोड़ा खुशी मिला, आनंद मिला, बस खत्म जीवन। मुक्ति के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। माता जी आप सोच रहे हैं बिकॉज आप इतना दिन से क्लास कर रहे हैं, आप भी क्लास छोड़ देंगे, आप भी मुक्ति को भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूं, हम तो देखते हैं ना कितने भक्त लोग क्लास छोड़ देते हैं और सब कुछ, फिर अपने से अर्थ और काम में फंस जाता है वो। अभी भक्त आपके जीवन में इतने स्ट्रांगली हैं तो इसीलिए आप मुक्ति के बारे में सोचते हैं। बट जैसे ही भक्त हमारे जीवन से चले जाएंगे फिर अर्थ और काम में हम फंस जाएंगे, धर्म भी भूल जाएंगे। अर्थ और काम, दैट्स इट। धर्म से आया बहुत अच्छा, अधर्म से आया बहुत अच्छा। दैट इज हाउ वी बिकम प्राउड। बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी आर चेंजिंग, बट वी बिकम प्राउड। देखो मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया, ये बन गया, वो बन गया। अरे भक्तों की कृपा से ही चल रहा है तुम्हारा।
मुक्ति, अभी हम मुक्ति के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम मुक्ति के बारे में बात कर रहे थे? नहीं, वो तो भक्तों की कृपा के वजह से हम मुक्ति के बारे में, अदरवाइज अर्थ और काम में ही सब फंसे हुए हैं। अर्थ आएगा, काम आएगा, काम से फिर अर्थ करूंगा, फिर अर्थ से काम, बस। So there is no concept of मुक्ति only. ज्ञान योग से मुक्ति चालू होता है। कर्मकांड और कर्म योग दोनों में मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ज्ञान योग में मुक्ति का कॉन्सेप्ट चालू होता है। वो ज्ञान से वो सोचता है कि अरे अर्थ काम में मैं फंसता रह रहा हूं और कुछ फायदा ही नहीं है, तो वो फिर सोचता है कि अर्थ और काम से भी कुछ ऊपर है क्या, वो है मोक्ष। तो ज्ञान योग से मोक्ष चालू होता है। फिर भी ज्ञान योग से उसको मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों नहीं मोक्ष मिलता है? क्यों नहीं मोक्ष मिलता है? मोक्ष कौन दे सकता है? मुकुंद मोक्ष दे सकते हैं। तो देन वो भक्ति करने लग जाता है। तो ये है योगा का लैडर। ओके, ओके, हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? यस, पूनम माता जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, माता जी जैसे बोला था, जैसे वो हमें, हाँ, वो तो मोक्ष के उससे नहीं आते हैं ना, dating stable life. For example, little children also, their parents, they want कि हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़े, so then how we can tell them how to bring them in bhakti. The question is not clear. Can you rephrase it? Prabhuji, people come for in bhakti for first of all for materially stable life. तो हम तो उसको मोक्ष का पॉइंट नहीं बोल सकते, तो कैसे कन्विंस है कि डेस्टिनी इज नॉट एवरीथिंग, हाउ दे शुड गो फॉरवर्ड? ओके, सो शुरुआत में हम जब लोग आते हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? बिकॉज दे आर नॉट कमिंग फॉर मोक्ष बट दे आर कमिंग फॉर शांति। शुरुआत में बहुत सारे लोग शांति के लिए आते हैं, तो हम बोल सकते हैं भक्ति करने से एटलीस्ट आपकी मन की शांति मिलेगा। एंड वो मन मिलता भी है, मन की शांति। सो इन दैट वे वी कैन इंस्पायर न्यू पीपल टू कम टू भक्ति। एटलीस्ट मन की शांति मिलेगा। पर उसके बाद फिर शांति चला जाता है, क्योंकि सेवा आ जाता है। सेवा में फिर शांति नहीं है। सेवा में केवल अशांति ही है। तो हमने क्लास लिया था शांति और सेवा के बारे में, आपको याद है? हाँ, बस ठीक। शांति दिखा के आप बुला सकते हैं, फिर सेवा देके अशांति क्रिएट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो इतना सेवा रहेगा कि अशांति के बारे में सोचने का भी समय नहीं रहेगा। तो आप अशांत है शांत है, वो सोचने के लिए भी समय नहीं रहेगा। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी आप सोच पा रहे हैं कि मैं अशांत हूं या शांत हूं, क्योंकि ये द्वंद्व है। ये जो भौतिक जगत द्वंद्व का दुनिया है। मैं शांत हूं अशांत हूं, आप सोच रहे हैं। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब शांत है। हर कोई इतना सेवा में व्यस्त है और घूम रहा है शांति से। तो आप भी जब घुस जाएंगे तो यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ समवन सिटिंग डाउन विद शांति। कोई कभी देखा ही नहीं कोई बैठा हुआ है शांति से और आपको आके बोल रहा है पूनम तुम इतना क्यों सेवा कर रही है, थोड़ा बैठो शांति से। दैट इज नॉट अवेलेबल ओनली। तो आपको क्या लगेगा? बस सब कोई सेवा कर रहा है, मैं भी करता हूं। इस दुनिया में क्या है, हम देखते हैं, अलग अलग चीज देखते हैं, तो उस देखने से हम प्रभावित होते हैं। आध्यात्मिक जगत में हर कोई सेवा कर रहा है, आप भी जुड़ जाओ। समझ में आ रहा है? आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, और सोचेंगे तो इधर ही रहेंगे। शांति के बारे में सोचेंगे तो भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, या फिर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। कहाँ गए वो? दिखाई नहीं दे रहे, शांति ढूंढने चले गए। कहाँ है माता जी आप? है आप? निकल ही गए शायद। शांति। हरे कृष्ण। चलिए। हाँ हरि बोल। आप हैं ना?
कहाँ है? आपका आवाज आ रहा है आपका? हाँ, सुनना ही नहीं दे रहा है। आपको क्या समझ में आया? ज्यादा शांति से अटैच क्यों होना हाँ? क्या क्या? न्यू डिवोटीज को शांति का प्रस्ताव देना है, अपना शांति से अटैच। हाँ, न्यू डिवोटीज को शांति का प्रस्ताव देना चाहिए और हम न्यू डिवोटीज की तरह नहीं रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड, अच्छा है। आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं माता जी, मैं बता रहा हूँ। आप न्यू डिवोटी से ओल्ड डिवोटी बन रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, यस। कमेंट इस आंसर, मतलब वो व्हाट्स इन माय हैंड वो चैप्टर में इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हाँ. तो देयर इट इज एक्सप्लेन कि व्हाट पर्सन कैन नॉट लाइक ना ही कश्चित क्षणमपि कैन नॉट सिट फॉर अ व्हाइल, ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। तो नारद मुनि जैसे बोलते हैं कि जैसे दुख बिना प्रयास के आता है, वैसे सुख भी बिना प्रयास के उसको मिलता है। तो citing the story of Tansen and Akbar ka conversation, we can say that Mai Sarvani Karmani, like whatever deed, whatever activity we do, obviously what answer you get, we can do it for the Lord. So that's it. For the newcomers, we can say this story. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हम बुरा कर्म और अच्छा कर्म को तो जो चक्रव्यूह है वो हट नहीं सकते हैं, पर जो भी आ रहा है उसको भगवान में जोड़ सकते हैं, तो उससे हमारा वो आ जाएगा, वो रेजोनेट विद डिविनिटी का चैप्टर का बता रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? चंदन प्रभु जी, वो कर्मा रिलेटेड में एक डाउट था, मतलब मेरे क्लैरिटी थोड़ा चाहिए था कि आप जैसे बोले ना कि जब गुरु साइकिल में इंटर करके करते हैं तो व्यक्ति का मतलब बैठ करना खत्म होता है, ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है, तो और फिर वो जो है वो गुरु को मिल जाता है। तो ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि भगवान जो है वो किसी से पार्शियल नहीं है, तो मतलब उसका जो सफरिंग उसको आने वाला था वो साधु को ट्रांसफर हो गया, गुरु को ट्रांसफर, कहीं ना कहीं तो कोई तो सफर कर रहा है उसके लिए, मतलब तो खत्म काम हो रहा है। नहीं, ऐसे बोला जाता है, बट गुरु डजंट सफर फॉर द कर्मास ऑफ द डिसाइपल्स। द गुरु गेट्स द कर्मा, but he doesn't suffer the karma. He has the power to digest the karma. So it's not that he suffers the karma. The guru takes the disciple's karma, but he doesn't suffer the karma of the disciple, like the disciple is suffering. So the guru has to get some karma, definitely, but it is very insignificant. And also, the guru doesn't suffer the karma of the disciple. Getting the karma, why? Because Krishna wants to please the demigods. That's it. Krishna wants to please the demigods. Krishna wants to ensure that the management system of what he has created of the material world is intact. And just to please the demigods and the managerial system and all, Krishna does like this. But that doesn't mean that the guru has to suffer. Oh, my disciple did so much, now I have to suffer because of my disciple. That is not the case. The guru gets the karma and doesn't suffer the karma. Okay, and why guru gets the karma? Because that's how the rule is. The rule of the world is like that, and Krishna doesn't want to disturb the rule. But Krishna doesn't make the guru suffer the karma. So we don't have to think that, oh, मैं इतना कर रहा हूँ तो my guru will suffer. No, guru will not suffer. Why guru will suffer? But guru will get some karma, definitely. Right? But why we will give our karma to guru? So we must understand that we should try to be as sincere, serious disciples as possible. Okay? Guru will not suffer. Okay.
Okay, in this world, a new devotee is so happy. So why would pure devotees be unhappy and suffering? But sometimes Krishna allows those things so as to glorify the pure devotees. Krishna allows many of the sufferings in the life of pure devotees so that these pure devotees also look like normal person, right? And because they look like normal person, and then we think, oh, they are also normal, they are also struggling and all, I am also struggling. So we think, okay, maybe ek din Suddha Bhakta ban sakta hu. If the pure devotees also behave like Krishna only, then people will think, oh, ये तो शुद्ध भक्त है इसीलिए वो कर ले रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा कभी. So Krishna doesn't make pure devotees behave like completely, they behave like ordinary souls only. Okay, so that we are inspired. Like if Srila Prabhupada comes and he doesn't get heart attack, he doesn't, everything is like Prabhupada comes and there is a halo behind him and immediately he starts preaching and sab koi bhakt ban gaya, so then no one will be inspired by Prabhupada. वो तो पहले से ही ऐसे ही थे. But then Srila Prabhupada is born, he gets so much of diseases in the childhood, he is about to die, and then he gets so much of failures, and then he gets heart attack on the ship, and everyone thinks, oh no, he is also a normal person struggling like this, but still he is doing so much for Krishna. Let me also do like that. You are understanding? Okay. Yes, so shall we go ahead? Yes, Saroj Mataji has one question. Okay. Yes, so we'll go ahead. तो इधर लिखा हुआ है next question. Brahmana is by any caste, is by birth or what? So लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण के घर पैदा होगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, ऐसे बोलते हैं. ठीक है ना? पर ये क्या सच है? सही है? हाँ, क्या बोल सकते हैं उनको? गुण और कर्म के हिसाब से. हाँ, गुण और कर्म के हिसाब से. एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा? क्या इंजीनियर? कौन है ये? वाह, तरुण प्रभु. क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा? शोभित क्या इंजीनियर बन जाएगा? रेलवे में घुस जाएगा? हाँ शोभित? हाँ क्या पता प्रभु, क्या पता, अभी तो खेल रहा है खिलौना से. ओके, तो क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाएगा? करेक्ट, सही बोल सकते हैं. और फिर ऑल पाथ्स लीड टू सेम गोल. सब तो एक ही जगह जाता है प्रभु. कुछ भी स्वामी जी कीजिए, सब तो ईश्वर के पास ही जा रहे हैं. ऐसे बोलते हैं ना कि लोग सब ईश्वर के पास ही पहुंच रहे हैं. तो सब क्या ईश्वर के पास पहुंच रहे हैं? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है. नहीं पहुंच रहे हैं. ओके, पावन कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं. रुक जाइए, सुनते हैं पावन कृष्ण प्रभु क्या बोलना चाहते हैं. कृष्णा says yanti deva vratam devam. वेरी गुड. सो यान्ति देव व्रता देवा पितृन यान्ति पितृव्रता. कि देयर आर डिफरेंट पाथ्स and different paths lead to different goals. यान्ति देव व्रता. देव व्रत, जो देवों का व्रत करते हैं, देवों के लिए व्रत करते हैं, नवरात्र करते हैं, या फिर और क्या क्या होता है, इंद्र पूजा करते हैं, अलग अलग देवताओं का पूजा करते हैं, वो देवलोक में जाएंगे. यान्ति देव व्रता देवा. पितृन यान्ति पितृव्रता. पितृव्रता जो पितरों का पूजा करते हैं, पितृ जहाँ है उधर जाएंगे. और भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतलोक में जाएंगे. यान्ति मद्या जिनोपि माम, जो मेरा पूजा करता है मेरे पास आएगा. सिंपल लॉजिक. कृष्ण क्लियरली से. या वी आर एनीवे फोर्स्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर स्वभाव. हमारा अपने हर कोई अपने स्वभाव से चल रहा है. निग्रहम किम करिष्यति, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं.
फिर उसको सप्रेस करके कि फायदा क्या है? अगर मेरे को मेरा स्वभाव से लग रहा है कि मैं किसी को चोरी करूं, मेरा तो ये स्वभाव है, जैसे सांप का स्वभाव है डसना, मेरा स्वभाव है चोरी करना, मैं चोरी कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? यस बीर नरसिंह प्रभु, मेरा स्वभाव है चोरी करना। एक्चुअली प्रभु जी अगर सिर्फ स्वभाव से ही चीजें चलती तो जितने भी स्क्रिप्चर्स है या जो भी नॉलेज हम लोग बचपन में जो भी हमें चीजें सिखाई जाती है, मतलब लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, दे बिकम्स यूजलेस। ओके, तो ये जो भी स्वभाव है दैट ऑब्वियसली पुशेस अस फ्रॉम इनसाइड, बट इफ वी हैव द नॉलेज एंड इफ वी प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, देन स्लोली थिंग्स कैन बी चेंज। बट हम चेंज करना ही नहीं चाहता हूं ना, मैं तो चेंज होगा ही नहीं, मैं तो फोर्सफुली एक्ट करूंगा। मेरे को मेरे पिताजी चेंज कर पाए क्या? बताइए। बचपन से जैसा था वैसे बन गया, फाइनली पैंट शर्ट पहनता था, फिर व्हाइट पहना, फिर सैफरन पहना, चेंज क्या कर पाए बेचारा? हाँ, खाली ऐसे देखता रहा वो। मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा अब नहीं आएगा। ये 3 स्तर पे। हाँ? तो क्या स्वभाव परिवर्तन कर दिया? बचपन से ऐसे ही था, ऐसे हो गया। आप तो खुद तो कर सकते हैं ना? हाँ? वो तो you can change yourself। तो मैं करूं क्यों? मैं तो कर ही नहीं पाया। क्या कर पाया? शादी कर पाया? नहीं कर पाया। बचपन से ऐसे ही मेरा स्वभाव था, बस हो नहीं पाया ना। प्रभु जी आप एग्जांपल दिए थे एक ड्रग एडिक्ट का, हाँ, कि वो ड्रग उसके पेरेंट्स ने बाहर निकाल दिया, तो इस कौन सी खिचड़ी के लिए वो लाइन में लगा। मैं करूं क्यों? मैं करूं क्यों? मैं करूं क्यों? हाँ, रुको एक एक करके। हाँ, अभी विष्णु प्रभु यही बोल रहे थे, अगर वो तो आप नहीं कर, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कर सकते हो। मतलब अरे मेरा तो इच्छा नहीं हो रहा है, मेरा इच्छा हो रहा है दारू पीने का बैठ के लोगों के साथ। निग्रहम किम करी सती। अब मेरा दारू पीने का इच्छा हो रहा है, आप क्या बोलेंगे मेरे को बताइए? नहीं, इच्छा नहीं है तो चेंज नहीं हो सकते, फिर तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। तो मैं दारू पीता ही रहूंगा। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, क्योंकि अंदर से आपको डेवलप करना पड़ेगा ना, हैबिट्स को चेंज करने के लिए माइंड और को चेंज। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, हाँ, तो फिर पड़े। तो फिर क्या होगा दुनिया में? सब लोग दारू पी के ही रहेंगे। हाँ करण, इच्छा नहीं होगा तो श्वेता माता जी आ जाएंगे, जबरदस्ती इच्छा करवाएंगे आपको जीवन में। आपको एक रेजोनेट विद डिविनिटी पकड़ाएंगे। दारू आप पी रहे हैं, आपके पास रेजोनेट विद डिविनिटी पढ़वाएंगे। ओके, हाँ। प्रभुपाद जी भी जब गए हिप्पीज से जब मिले, उन्होंने थोड़ा सा, अगर हिप्पीज नहीं चेंज करना चाहते थे, वो नहीं बदलना चाहते थे, तो नहीं, जो बदलना चाहते हैं हैबिट्स को चेंज करने के लिए, फिर वो एसोसिएशन चाहिए, उनको खुराक चाहिए, उनको मिलेगा तभी, नहीं तो आप चेंज ही नहीं, तो ऐसे ही रहो। ओके, ऐसे ही रहो। तो जो चेंज करना नहीं चाहेगा वो चेंज होगा नहीं। ओके, दिस इज वन थिंग। हाँ, सुकृष्ण स्ट्रेटेजी है। हाँ, आपके जीवन में नीड नहीं है तो पहले क्रिएट करो, फिर हाँ। तो बिजनेस का स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं सुकृष्ण प्रभु, कंपनी का स्ट्रैटेजी है। और आपको नीड फील नहीं हो रहा है, पहले नीड फील करवाओ, फिर उसके बाद सेल करवाओ। ऐसे ऐसा है क्या उदाहरण कृष्ण प्रभु? IIM में पढ़ाया जाता है। हाँ, रियल लाइफ में तो नहीं होता। रियल लाइफ में नहीं होता है। तो मेरा मतलब ये आंसर नहीं थे। जैसे ट्रैक्टर का प्रभु जी एक पर्पस है, हाँ, खेती करना। मर्सिडीज से नहीं कर पाएंगे, हाँ, कर पाएंगे लेकिन तो बट ट्रैक्टर, अगर आपको ट्रैक्टर शरीर मिल गया तो गया, फिर आपका तो खेती करते रहो जीवन भर। जानवर लोग हैं जैसे, तो जानवर लोग टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली दे कैन नॉट एक्ट रेस्पॉन्सिबली, बट यू हैव गिवन दिस बॉडी टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली। हाँ, सो ये है करेक्ट। So this is a very important point which is telling from Resonate with Divinity, that all of you should read Resonate with Divinity very nicely. This is what he is telling कि निग्रहम किम करिष्यति is for animals. Animals have no power to change.
जो गाय होता है, अगर आप पढ़ेंगे उसका सेकंड चैप्टर, गाय होता है, वो गाय वेजिटेरियन होके पैदा होगा, वेजिटेरियन होके मर जाएगा। घास खाते हुए पैदा होगा, घास खाते हुए मर जाएगा, वो बदल नहीं सकता है। उस जो योनि है, पशु योनि में निग्रहम किम करिष्यति बोला जा सकता है, पर मनुष्य योनि में वी हैव बीन गिवन द पावर टू चेंज। नाउ हाउ वी चेंज, हाउ मच वी कैन चेंज, वी कैन डिस्कस एंड डिबेट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कितना हम बदल सकते हैं और कैसे हम बदल सकते हैं वो अलग बात है, पर मनुष्य योनि और पशु योनि में अंतर है। मनुष्य योनि के पास शक्ति है बदलने का, पशु योनि के पास शक्ति नहीं है बदलने का। उदाहरण स्वरूप अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उधर एक उदाहरण दिया गया है, एक कौवा का और तोता का। कौवा के पास शक्ति ही नहीं है बोल पाने का, तो कौवा को कितना ट्रेनिंग दो वो बोल ही नहीं पाएगा। कोई ऐसा है, कोई माइके लाल जो सत्संग क्लास कर रहा है, कौवा को लेके आके पिंजरा में रखेगा और बोलेगा हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। कौवा कभी बोलेगा हरे कृष्ण? हाँ, पर वही चीज अगर तोता को लेके आएंगे, तोता बोल सकता है, बिकॉज तोता के अंदर वो शक्ति दिया गया है, ईश्वर ने वो शक्ति दिया है तोता को, इसीलिए तोता बोल पा रहा है। पर तोता को अगर ट्रेन नहीं करेंगे, जंगल का सब तोता बोलता है क्या? यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? हर तोता जंगल का बोलता है क्या? नहीं बोलता है। उसके पास शक्ति है पर वो यूज नहीं कर रहा है। Why? Because there is no training. So you may have the facility, but if you do not get trained, you may not be able to use that facility. So पहला चीज आपको बोलना पड़ेगा कि मनुष्य के पास वो शक्ति है बदलने का, पशु की तरह पशु के पास नहीं है बदलने का। और दूसरा चीज, अगर मनुष्य बदलने का कोशिश नहीं करेगा तो वो पशु बन के रहेगा, निग्रहम किम करिष्यति। दैट इज ट्रू। तो क्या प्रॉब्लम है पशु बनने में? क्या प्रॉब्लम है पशु बन के रहने में? क्या प्रॉब्लम है? तो पशु बन के रहने में प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको पशु बन के ही रहना है तो मनुष्य शरीर में क्यों रहेंगे? ईश्वर आपको फिर से पशु योनि दे देगा नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि आपको अगर पशु बन के ही रहना है, व्हाई यू विल बी गिवन ए हायर बर्थ। अगर आपको खेती करना ही है, द गवर्नमेंट आपको मर्सिडीज थोड़ी नहीं देगा खेती करने के लिए। क्या देगा? ट्रैक्टर देगा। पर अगर मर्सिडीज को लेके गवर्नमेंट से खेती करेंगे तो मर्सिडीज वापस ले लेगा, ट्रैक्टर दे देगा आपको। तो उसी तरह हमको समझना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, ये जो शरीर आपको दिया गया है, दिस बॉडी हैज बीन गिवन फॉर ए हायर पर्पस। Human body is for a higher purpose. If you do not use human body for a higher purpose, we can also tell nigraham kim karishyati. Then you will be given a body which has nigraham kim karishyati by default. पशु योनि में निग्रहम किम करिष्यति मतलब we are so forced, अब हम क्या ही कर सकते हैं, ये पशु योनि है, आपको मिल जाएगा। पर कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनुष्य के पास शक्ति है बदलने का। हर मनुष्य के पास शक्ति है बदलने का। एक ड्रग एडिक्ट भी बदल सकता है, पर एक कुत्ता को ड्रग एडिक्ट बना दो, वो बदल नहीं सकता है। पर मनुष्य ड्रग एडिक्ट बनता है तो बदल सकता है, क्योंकि वो शक्ति है उसके पास। ओके, इज दिस क्लियर? सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू शुड रीड Resonate with Divinity. Bihari Govind Prabhu was telling that in Yatra you will distribute Resonate with Divinity. So you should have some planning to read that, so that you will actually, if you do not have nicely nourish your logic, then after some time you will only get disturbed by faith. So that's why Chaitanya Charitamrita it is said, Siddhanta baliya chitte na karo alas. Open the verse. Okay, we'll open the verse. So this is the verse. So Chaitanya Charitamrita. Where is the verse number? I don't remember. So anyway, I'll tell the verse. Siddhanta baliya chitte na kara alas.
इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस. So we should not become so lazy, आलस्य मतलब lazy, to learn the Siddhanta. Siddhanta baliya chitte. Siddhanta is very powerful and we should never become lazy to understand the Siddhanta. Especially भगवद गीता का जो सिद्धांत है, आप सब सोच रहे होंगे अभी तो मैं भागवतम क्लास में आ गया हूँ, तो क्या भगवद गीता का फिलॉसफी है, ये है वो है, क्यों पढ़ने की जरूरत है? आपको पढ़ना चाहिए. नहीं पढ़ेंगे तो भागवत में एक श्लोक आता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आपको मैं बोलता हूँ. सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये 10वें स्कंद में बताते हैं कि जब एक पथ होता है और जब बारिश होता है, पथ के अंदर बहुत सारे घास उठने लग जाते हैं. तो पर इस पथ पे अगर कोई चल रहा है, इस पथ पे अगर कोई चल रहा है, हर समय अगर चल रहा है, तो अगर इस पथ पे चल रहा है तो ये घास ज्यादा उठेगा नहीं, घास या पेड़. पर इस पथ पे कोई चल नहीं रहा है, दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड, देन ये पथ पे घास और पेड़ बढ़ने लग जाएंगे. एंड इस पथ पे इतने घास और पेड़ बढ़ जाएंगे तो फिर कोई उसका व्यवहार ही नहीं कर पाएगा. फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये पथ ही दिखाई नहीं देगा. कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग साधना करते नहीं है सही से, हरि नाम करते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं. अब तो हम भक्त बन गए, दीक्षा हो गया, क्या पढ़ाई करने का जरूरत है, हमको सब पता है, भगवद गीता का सब ज्ञान पता है, तो भगवद गीता पढ़ते नहीं है. भगवद गीता तो बेसिक लोगों के लिए है प्रभु, हम तो भागवतम पढ़ते हैं, तो भगवद गीता चर्चा नहीं करते हैं, सिद्धांत के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, तो उनका ये जो रास्ता है घास बढ़ने लग जाता है. फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इतना घास बढ़ जाएगा, रास्ता ही नहीं दिखाई देगा. तो इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे भक्त, दीक्षा होता है, सब सीखते हैं, भगवद गीता सीखते हैं, वो सब करते हैं, फिर पथच्युत हो जाते हैं. क्यों पथच्युत हो जाते हैं? उनको मार्गहीन हो जाते हैं. इसको बोलते हैं मार्गहीन हो जाता है. मार्गहीन क्यों हो जाता है? मार्ग ही दिखाई नहीं देता, इतना घास उठ गया. और ये जो बारिश है ये माया का बारिश है. माया हर समय बारिश करके अलग अलग प्रलोभन का घास उठा रहा है हमारे आध्यात्मिक पथ और आध्यात्मिक मार्ग में. तो मोह का बारिश से हमारे आध्यात्मिक मार्ग में अलग अलग पेड़ उगते रह रहे हैं हर दिन. और अगर हम पढ़ते रहेंगे, भगवद गीता पढ़ते रहेंगे, ऐसे कभी मत सोचिए कि मैं अभी भागवत पढ़ने लग गया तो भगवद गीता तो हरे कृष्ण राधे राधे. तो भगवद गीता में सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है और सिद्धांत को समझने में कभी भी आलस्य नहीं होना चाहिए और सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, दूसरों को बोलना चाहिए. और जितना आप सिद्धांत अच्छे से पढ़ेंगे उतना ये जो पाथ है, मार्ग है, राजमार्ग या फिर मोक्ष मार्ग, भक्ति का मार्ग या फिर भागवतम का भगवत धाम की मार्ग, ये क्लियर रहेगा. तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भगवद गीता पढ़िए, एटलीस्ट तो रेजोनेट विद डिविनिटी पढ़िए, उसमें उसका जो लॉजिक है उसको अच्छे से सीखिए, उसको दूसरों को बोलिए. क्योंकि हमने देखा है कि भक्त लोग जब आगे बढ़ते हैं, भगवद गीता का जो ज्ञान है उसको वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं. और भगवद गीता आप छोड़ देंगे, वो फाउंडेशन है. भगवद गीता की जो सिद्धांत है हमारी आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन है, नींव है. उस सिद्धांत को अच्छे से सीखिए और बार बार स्मरण करते रहिए, बोलते रहिए लोगों को, तो आपकी जो भक्ति का मार्ग है वो रहेगा. हमने देखा है हमारे गुरु वर्गों को, राधेश्याम प्रभु और बाकी गुरु वर्गों को भी
अभी भी वही जो शुरुआत की क्लासेस हैं अभी भी उसको देते रहते हैं, अभी भी उसको देते रहते हैं, अभी भी भगवत गीता का ऊपर क्लास देते रहते हैं, भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, भगवत गीता पढ़ाते रहते हैं। भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब मेरा ये अनुरोध है, भागवत पढ़ रहे हैं पर बीच बीच में अपना पर्सनल रीडिंग के लिए भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, भगवत गीता को ज्ञान को पढ़ सकते हैं। फिर से आप भगवत गीता का जो हमारा सीरीज है उसको बीच बीच में सुन सकते हैं। और भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम चलते हैं। वर्सेस ओके 2.117 आदि लीला। ओके, आदि लीला द्वितीय अध्याय का 117 नंबर श्लोक बोल रहे हैं करण प्रभु। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? तो ये मेरा अनुरोध है कि आप सब भगवद गीता पढ़िए, एटलीस्ट रेजोनेट विद डिविनिटी पढ़िए। अगले साल में हम भक्ति योग के ऊपर किताब लिख रहे हैं, उसको भी पढ़िए। ये दो किताब कर्म योग और जो भक्ति योग के ऊपर अगले साल आएगा, ये दोनों आप अच्छे से इसका लॉजिक को, जो भी कोई प्रचारक बनना चाहता है और अच्छे से उस लॉजिक को समझिए, ताकि आप खुद आपका लॉजिक क्लियर होगा और दूसरों को भी प्रचार कर सकते हैं। खाली ये बांटिए मत, पढ़िए भी। ओके, एंड हमको लग रहा है कि रेजोनेट विद डिविनिटी का भी टेस्ट करना चाहिए। तो एग्जाम होगा तो सब पढ़ने लग जाएंगे नहीं तो इधर उधर का उत्तर दे रहे हैं कहाँ से ये निग्रहम किम करिष्यति का क्या उत्तर दे रहे हैं इधर उधर। तो इधर उधर का उत्तर मत दीजिए, लॉजिक बताइए और सही लॉजिक बताइए, गीता के अनुसार लॉजिक बताइए। हमको समझना चाहिए मनुष्य शरीर इसी के लिए बना है। एक श्लोक आता है, ब्रह्मावलोकधिषणम पुरुषम निधाया। भागवत में ये श्लोक आता है, आप सब ढूंढ सकते हैं, अभी प्रभु जी ढूंढेंगे। ब्रह्म अवलोकधिषणम पुरुषम सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजयात्मशक्त्या। सृष्टा पुराणी विविधानि अजय आत्मशक्त्या। सृष्टवा, भगवान ने सृष्टि किया, पुराणी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की। पुराणी, पुराण मतलब बहुत अलग अलग, बहुत पुराने में मतलब पुराने जमाने में, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन कृष्णा क्रिएटेड सृष्टवा पुराणी विविधानि। विविधानि मतलब विविध मतलब वेराइटीज, विविधानि। सृष्टवा पुराणी विविधानि अज आत्मशक्त्या। भगवान की जो शक्ति है, अपनी शक्ति से सृष्टवा पुराणी विविधानि अजय आत्मसत्ता सरीसृप दंडसुकान वृक्षान। इस तरह का बहुत सारे सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजय आत्मशक्त्या। सरीसृप भगवान ने बनाया, दंडसुकान बनाया, सांप बनाया, एम्फीबियन बनाया, मैमल्स बनाया, इस सब को बनाया, पर भगवान दुखी हो गए ये सब बना के। ये भागवत में आता है। ये सब इतना सृष्टि करके, मान लीजिए कोई आईफोन बनाता है, आईपैड बनाता है, मैकबुक बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, फिर दुखी हो जाता है। हाँ, इतना सारा बना के भगवान दुखी हो गए। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्यों दुखी हो गए? कि अरे ये सब योनि जो मैंने बनाया, इस सारे योनि में निग्रहम किम करिष्यति। These are all forced to act by instinct, by default. They have no power. ये नहीं मिला? Okay, I will search. It's very simple. Okay, they are not getting it. We will recite this verse and we'll end. Okay, so सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजय आत्मशक्त्या। Okay, what is the purusham nidhaya? Purusham nidhaya.
Okay, how come it is not come? Okay, this verse comes. Labdhva sudhurlabhamidam. इसका पहला verse. So if you don't get that verse, we get the pehla verse. Labdhva sudhurlabhamidam bahu sambhavante. Yeah, now it has come. Okay. Yes. It's the pehla wala verse. So it is 11, 9, 28. So we'll see this verse. Okay, it's visible. Sruštva purani bibidhani ajayatma saktya. Vrikshan sarishrupa pasun khagadanda sukan. Tester atushta hrudaya purusham vidhaya. Brahmavalokadhishanam mudamapadevaha. सृष्ट्वा पुराणी विविधानी अजय आत्मशक्त्या. सृष्ट्वा मतलब सृष्टि किए, पुराणी विविधानी अजय आत्मशक्त्या. वृक्षान वृक्ष सृष्टि किए, सरीसृप सृष्टि किए, पशु सृष्टि किए, खग सृष्टि किए, खग मतलब चिड़िया, दंड सूकान मतलब सांप. तैस्तेर इतना सारा सृष्टि करके अतुष्ट हृदय, तुष्ट मतलब शांति, अतुष्ट मतलब अशांति, अशांत हो गए. कोई इतना सृष्टि करने के बाद, इतना काम करने के बाद अशांत हो जाएगा क्या? पुरुषम विधाया, फिर मनुष्य शरीर बनाए. ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव. पुरुष मनुष्य शरीर में ब्रह्म को अवलोक करने का धीषण, धीषण मतलब बुद्धि दिया, और वो बुद्धि दिया तो इसीलिए मुदमापदेव, बहुत खुश हो गए भगवान. तो केवल ये परपोट आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा परपोट है, आप पढ़ सकते हैं अपने खाली समय में. और नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इतने सारे योनि है, 84 लाख योनि में 80 लाख योनि केवल, सब 80 लाख जितने सारे योनि है वो निग्रहम कम करिष्यति अवस्था में है. उनका कोई, there is no, forget about that. Even 4 लाख मनुष्य योनि में भी बाकी सब लोग निग्रहम किम करिष्यति अवस्था में है. पर केवल मनुष्य जीवन में ऊपर उठने का तरीका है. इसीलिए मनुष्य जीवन अगर मिला है तो क्या बोल रहे हैं देखिए. लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते. और कोई मानुष्यमर्थदमनित्यमपि धीरः. तूर्णं यते तनपतेदनुमृत्यु यावन्. निःश्रेषया विषया खलु सर्वशतः स्यात्. या निःश्रेयसा विषय खलु सर्व. लब्ध्वा सुदुर्लभम विधम. बहुत मुश्किल के बाद ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, जो केवल मनुष्य जीवन में ही हम भगवान को जान सकते हैं, कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, पशु योनि से ऊपर उठ सकते हैं. इसको मिलने के बाद जितना जल्दी हो सके भक्ति में तीव्र हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बताते हैं. तो इसलिए मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि भगवत गीता का ज्ञान को अच्छे से पढ़िए और फिलॉसफी एंड लॉजिक को अच्छे से समझिए, तो आपकी भक्ति और सुदृढ़ होगा. और सिद्धांत को समझने में आलस्य मत कीजिए. खाली ऐसे प्रभु जी आ रहे हैं, कथा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, बस हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी कथा सुनने में, कितना मीठा मीठा मधुर मधुर कथा आप बोल रहे हैं, वो सही है, कथा हमको सुनना चाहिए. We should hear the katha, but we should be very clear about सिद्धांत. और हमने देखा है हमारे गुरु वर्गों को, they are very clear about. हमारी गुरु परंपरा देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अभी हम हाल ही में शुक्रवार को क्लास दे रहे थे मंदिर में,
कितना अच्छे से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने रसिक आचार्य हैं, केवल रास लीला के ऊपर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही हैं जो गोविंद लीलामृत लिखे हैं। गोविंद लीलामृत में भगवान की रास लीला, ये वो, सो मेनी थिंग्स आर मेंशन्ड। एंड वही कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रास लीला के बारे में इतना वर्णन किए। पर जब एकादश स्कंद आता है और दसम स्कंद की ये सब टिप्पणियां आती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितना अच्छा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि कभी नहीं सोचना चाहिए मैं तो अभी भागवत पढ़ रहा हूं, अब क्या ये भगवत गीता के ऊपर चर्चा, सिद्धांत के ऊपर चर्चा। सो ए डिवोटी शुड रेलिश। जैसे एक जन श्रील प्रभुपाद को बता दिए कि स्वामी जी हम तो रास लीला पढ़ते हैं, भगवत गीता तो प्राइमरी है। तो श्रील प्रभुपाद इतना गुस्सा हो गए कि जो शुद्ध भक्त होता है कि भगवत गीता के ज्ञान में भी उसको वृंदावन दिखता है, और जो जिसके हृदय में कलश बैठा हुआ रहता है, कलमस बैठा हुआ रहता है, उसको रास लीला में भी वृंदावन नहीं दिखता है। तो हमको समझना नहीं चाहिए कि हम भागवत पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लीला पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, पर सिद्धांत हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। इधर उधर से सुनना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह का पूर्व जन्म क्या था, द्रौपदी का पूर्व जन्म, ये सब महाभारत में आता है, ये सब नहीं सुनना चाहिए। हमको जो सही से सुना है उसको ही सुनना चाहिए, और भागवत और भगवत गीता के ऊपर हमको जोर देना चाहिए। जो भी भगवत गीता भागवत में लिखा है उसी के अंतर्भुक्त हमको रहना चाहिए। भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये तीन चीज बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ये तीन चीज में ही जितने हमारे सारे गोस्वामी लोग हैं, भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत के अंदर ही अपना सीमित रखे ज्ञान को। हम भी गुरु परंपरा में आके भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत में भी ही हम अपने ज्ञान को सीमित रखें, और इधर उधर नहीं जाएं, नहीं पढ़े, कुछ आवश्यकता नहीं, और भगवत गीता के ज्ञान को ज़्यादा सुदृढ़ करें। ये मेरा अनुरोध है। पढ़िए आप रेजोनेट विद डिविनिटी, उसका लॉजिक समझिए, और उस लॉजिक को लोगों को बताएंगे तो लोग भक्त बनेंगे। आप अपना लॉजिक देंगे, भगवान का लॉजिक नहीं देंगे तो लोग भक्त नहीं बनेंगे। भगवान से ही हमको शक्ति मिलता है खुद का भक्ति करने के लिए, दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरा अनुरोध है, इसीलिए ये असाइनमेंट दिया था। थोड़ा भगवत गीता का रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। एक बार हम रेजोनेट विद डिविनिटी का भी टेस्ट लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको भगवत गीता और पढ़ने के लिए वो मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। नहीं तो लग रहा है कि इधर उधर का आंसर आप सब बताने लग गए। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प, और मैं कभी कभी कटु शब्द बोलता हूँ, मेरे को माफ़ कर दीजिए, पर मैं चाहता हूँ आप सब आगे बढ़िए भक्ति में, और मेरे से भी 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना आगे बढ़िए, और भगवत धाम जाइए, पहले पहुँच जाइए, और हमको भी लेके जाइए। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम पिटाई करते हैं, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, और पढ़ते रहिए भगवत गीता। ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।